حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام میں ایک عجیب نبی اور طاقتور بادشاہ تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنے۔ وہ ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت دی۔ انہیں ایسے حکمدار بنایا گیا جس نے نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنوں، ہواؤں اور جانوروں پر بھی حکومت کی۔ قرآن میں 17 سے زیادہ جگہوں پر ان کا ذکر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور ایک طاقتور بادشاہ تھے۔ ان کی سلطنت کا علاقہ فلسطین، سیریا اور یروشلم تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت انصافی بادشاہ تھے اور اللہ نے انہیں زبور نامی کتابی عطا کی تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے بیٹے کو حکومت اور دینی علم سکھانے لگے۔ چھوٹی عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سمجھدار اور عقل مند تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کی عدالت میں بیٹھتے اور انصافی کے معاملے سنتے۔ وہ لوگوں کے جھگڑے اور مقدمے سلجھانے میں بہت تیز تھے۔ ان کی عقل اور حکمت کا سب سے پہلا مشہور واقعہ دو عورتوں اور بچوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دن دو عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آئیں۔ دونوں عورتوں کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور دونوں عورتیں کہہ رہی تھی کہ یہ ان کا بچہ ہے۔ جھگڑا یہاں تھا کہ بچہ اصل میں کس کا ہے۔ پہلی عورت کہتی یہ بچہ میرا ہے، دوسری عورت کہتی نہیں یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت سوچ وچار کیا اور بڑی عمر والی عورت کو بچہ دے دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر دونوں اسے اپنا بیٹا مانتی ہیں تو اس بچے کو تلوار سے دو حصوں میں کاٹ دیا جائے، آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دیا جائے۔ پہلی عورت خاموش رہی، لیکن دوسری عورت رونے لگی اور کہنے لگی نہیں، بچے کو مت مارو، اسے پہلی عورت کو دے دو، لیکن اس کا قتل مت کرو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچے کی اصلی ماں یہی ہے، کیونکہ ایک اصلی ماں اپنے بچے کو مارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ بچہ دوسری عورت کا ہے۔ اس فیصلے کے بعد سبھی نے ان کی حکمت اور عقل مندی کو مان لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے سلیمان کو ایک خاص حکمت عطا کی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بادشاہت اور نبوت عطا کی۔ اب وہ صرف نبی ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بھی بن چکے تھے۔ ان کا علاقہ فلسطین، سیریا، مصر، یمن اور عراق تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کے قریبی لوگ انسان، جن، جانور اور ہوائیں تھی۔ اللہ نے انہیں دولت، طاقت اور حکمت دی تھی۔ ان کے انڈر کام کرنے والے لوگ انسان، جن، جانور اور ہوائیں تھی۔ اللہ نے انہیں دولت، طاقت اور حکمت دی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دی گئی تو اللہ نے انہیں کچھ ایسی طاقتیں عطا کی جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی۔ یہ طاقتیں نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات، ہواؤں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ان طاقتوں کی وجہ سے ان کی حکومت اتنی مضبوط اور کامیاب ہوئی کہ کوئی انہیں ہرا نہیں سکا۔ اللہ نے انہیں جنوں پر پورا کنٹرول دیا تھا۔ وہ اپنے حکم سے جنوں سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے۔ اگر کوئی جن نافرمانی کرتا تو اسے زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا۔ جن ان کے لیے مضبوط قلعے، بڑے بڑے محل، پل اور عمارتیں بنواتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے سلیمان کے متحد ہوا اور جنوں کو کر دیا تھا جو اس کے حکم سے عمارتیں بناتے اور سمندر کی گہرائیوں سے موتی اور دوسرے خزانے نکالتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر کیسی طاقت دی تھی۔ پھر اللہ نے ہواؤں کو بھی ان کے حکم کا پابند کر دیا تھا۔ وہ ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے تھے۔ ان کی پوری فوج انسان، جن، جانور کو ایک ساتھ ہوا کے ذریعے لے جایا جاتا تھا۔ قرآن میں آتا ہے اور ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے کر دیا تھا جو ایک دن میں 1 مہینے کا سفر طے کر لیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سفر عام طور پر 30 دنوں میں پورا ہوتا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف 1 دن میں ہی پورا کر سکتے تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں، جانوروں اور کیڑوں کی زبان سمجھنے کی طاقت دی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے اور ان سے جانکاری حاصل کر سکتے تھے۔
उनका एक बड़ा लश्कर था जिसमें इंसानों के अलावा जिन और जानवर भी शामिल थे। कुरान में आता है, और सुलेमान के लिए जिनों, इंसानों और परिंदों का एक लश्कर तैयार किया गया था और वो सभी उनकी हुकूमत के मतहत थे। अब उनके लश्कर में इंसान, जिन और परिंदे भी शामिल थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का सिस्टम बहुत ही मजबूत और इंसाफी था। उन्होंने अपने दौर में कोई जुल्म और नाइंसाफी नहीं होने दी। उनकी सल्तनत में हर कोई सुकून और अमन के साथ रहता था। हर चीज पर उनकी नजर थी। हर किसी को बराबरी का इंसाफ मिलता था। हर काम के लिए खास लोग नियुक्त किए गए थे। अगर कोई जुल्म करता तो उसे सख्त सजा मिलती थी। यही वजह थी कि उनकी हुकूमत बहुत कामयाब थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों और जिनों तक ही नहीं थी, बल्कि उनके पास एक खास तरह का लश्कर भी था। उनके लश्कर में 3 तरह की मखलूक थी। इंसान, जिन्हें जंग और हुकूमत के कामों में लगाया जाता था। जिन, जो मजबूत किले, बड़े बड़े महल और अजीबो गरीब चीजें बनाते थे। परिंदे और जानवर, जो जासूसी और पैगाम पहुंचाने का काम करते थे। उनके पास हवा की ताकत भी थी, जिससे उनका लश्कर बहुत तेजी से सफर करता था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने पूरे लश्कर के साथ सफर कर रहे थे। उनका लश्कर इंसानों, जिनों और परिंदों से मिलकर बना था। जब वो एक जंगल के करीब पहुंचे तो वहां नस्ल चींटी की एक वादी थी। इस जगह पर बहुत ज्यादा चींटियां बसी हुई थी और उनके लिए यहाँ एक महफूज इलाका था। जब लश्कर चींटियों के इस बस्ती की तरफ बढ़ रहा था तो एक चींटी ने देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी सेना आ रही है। उसे डर हुआ कि कहीं इंसानों और जानवरों की भीड़ में चींटियां कुचल न जाएं। तब उस चींटी ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ऐ चींटियों, जल्दी से अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनकी सेना तुम्हें कुचल दे और उन्हें इसका इल्म भी ना हो। चींटियों ने यह बात इसलिए कही क्योंकि इंसान इतनी छोटी मखलूक को नहीं देख सकते और गलती से उन्हें कुचल सकते हैं। इस बात से पता चलता है कि चींटियां भी आपस में बातचीत करती हैं और उनके अंदर भी लीडरशिप और जज्बा होता है। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की भाषा समझने की ताकत दी थी। जब उन्होंने चींटियों की आवाज सुनी तो वो मुस्कुरा दिए और अपनी सेना को रुकने का हुक्म दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की समझदारी और अपनी कौम को बचाने के जज्बे से बहुत मुतासिर हुए। फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक खूबसूरत दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की है, और मुझे ऐसी नेक काम करने की तौफीक दे जिससे तू राजी हो और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। इस दुआ से पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी ताकत पर घमंड नहीं था, बल्कि वो हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में ना सिर्फ इंसान और जिन बल्कि परिंदे भी शामिल थे। हर परिंदा अपने काम में माहिर था। कोई जासूसी करता था, कोई पैगाम लाता था, तो कोई फौज की निगरानी करता। एक परिंदा था जिसे हुदहुद कहा जाता है। वहां भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना का एक खास परिंदा था जिसे पानी के स्रोतों का पता लगाने की महारत हासिल थी। यह परिंदा बहुत तेज रफ्तार और जमीन के अंदर छिपे पानी को पहचानने की काबिलियत रखता था। इसी वजह से इसे सेना के सफर के दौरान पानी की खोज करने का काम सौंपा गया था। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज की गिनती कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हुदहुद गायब है। उन्होंने अपने लश्कर से पूछा, हुदहुद कहाँ है? वहां बिना मेरी इजाजत के गायब क्यों है? जब हुदहुद कहीं भी नजर नहीं आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अगर हुदहुद ने मुझे कोई मजबूत वजह नहीं बताई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जिंदा काट डालूंगा। इससे हमें पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज कितनी अनुशासित थी। उनकी सेना में कोई भी अपने मन से नहीं जा सकता था। हर किसी को अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी। कुछ ही देर बाद हुदहुद उड़ता हुआ वापस आया और सीधा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जिसके बारे में आपको कोई इल्म नहीं। मैं एक बहुत ही अजीब मुल्क यमन से लौट रहा हूँ। वहां की एक रानी है जो बहुत ताकतवर है
और उसके पास बहुत बड़ा तख्त है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हैरानी हुई, और एक और सल्तनत ऐसी है जिसका उन्हें इल्म नहीं था। हुदहुद ने बताया कि इस मुल्क की हुकूमत एक औरत कर रही है जिसका नाम बिल्किस है। उसके पास बहुत बड़ी सल्तनत, शानदार सेना और सोने चांदी से भरा एक तख्त है, लेकिन उसकी कौम अल्लाह की इबादत नहीं करती। वो सूरज को अपना खुदा मानकर उसकी पूजा करते हैं। कुरान में आता है, मैंने वहां की रानी बिल्किस और उसकी कौम को सूरज की पूजा करते पाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत परेशान हुए कि एक पूरी कौम गुमराही में पड़ी हुई है। वो जानते थे कि ये शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत बहुत बड़ा गुनाह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हुदहुद को एक लेटर देकर बिल्किस के पास भेजा। उन्होंने कहा, जाओ और यहाँ खत रानी बिल्किस को दे आओ, देखो कि वो और उसकी कौम क्या जवाब देते हैं। जब हुदहुद बिल्किस के पास पहुंचा तो उसने वो खत उसके महल में गिरा दिया। बिल्किस ने जब उस खत को पढ़ा तो वो हैरान रह गई। ये खत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुआ था और उसमें लिखा था, मेरी तरफ से तुझ पर सलाम हो, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो और उसकी तरफ झुक जाओ, मेरे पास आओ और इस्लाम कबूल करो। ये खत पढ़कर बिल्किस को अंदाजा हो गया कि ये कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि बहुत ताकतवर हुकूमत वाला इंसान है। बिल्किस ने अपने वजीरों और दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा, ये खत मुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से एक हुक्मरान ने भेजा है। वो हमें इस्लाम की दावत दे रहा है और अपनी बादशाहत की ताकत दिखा रहा है। तुम्हारी क्या राय है? क्या हमें उनसे लड़ाई करनी चाहिए? हमारे पास बहुत बड़ी फौज है और हम लड़ सकते हैं, लेकिन फैसला तुम्हें ही करना है। बिल्किस ने सोचा कि बिना लड़े पहले इसका पता लगाया जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वे एक कीमती तोहफा भेजेंगी और देखेंगी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या रवैया होता है। उसने अपने वफादार वजीरों और सिपाहियों को बुलाया और कहा, हम इस सुलेमान को एक बेशकीमती तोहफा भेजेंगे। अगर वो सिर्फ एक आम हुक्मदार हुआ तो वो इस तोहफे को लेकर खुश हो जाएगा, लेकिन अगर ये सच्चा नबी हुआ तो इसे दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्किस ने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और बहुत कीमती चीजों से भरा एक तोहफा बनवाया। उसने अपने सबसे करीबी दरबारी और सिपाहियों को यह तोहफा लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। यह एक इम्तिहान था, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दौलत को लेकर खुश होंगे या कुछ और जवाब देंगे। जब बिल्किस के आदमी तोहफा लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां कीमती तोहफा पेश किया और कहा, ये हमारी रानी बिल्किस ने आपके लिए भेजा है ताकि आपको खुश कर सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फौरन समझ गए कि बिल्किस उन्हें एक आम हुक्मदार समझ रही। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे दौलत देकर खुश करना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे इससे कई ज्यादा नेमतें दी हैं। तुम अपनी दौलत वापस ले जाओ और जाकर अपनी रानी से कहो कि अगर वो मेरे पास इस्लाम कबूल करने नहीं आई तो मैं उसके पास एक ताकतवर फौज लेकर आऊंगा। ये सुनकर बिल्किस के आदमी हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक आम बादशाह नहीं बल्कि सच्चे नबी है। वे जल्दी से यमन वापस लौटे और सारी बात बिल्किस को बता दी। जब बिल्किस ने ये सुना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी दौलत को ठुकरा दिया है और जंग की धमकी दी है तो वो बहुत डर गई और सोचने लगी, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज ने हमला कर दिया तो हम जीत नहीं सकते। हमें खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कौन हैं। फिर उन्होंने फैसला किया कि वह खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी और उनकी हिकमत जानेंगी। इस फैसले के साथ बिल्किस अपने लश्कर के साथ यरूशलेम की तरफ रवाना हो गईं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि बिल्किस उनके पास आ रही हैं,
तो उन्होंने अपने दरबारी से कहा, कौन है जो इससे पहले वहां यहाँ पहुंचे, उसका तख्त मेरे पास ला दे। बिल्किस का तख्त बहुत भारी और बेशकीमती था, वहां यमन में था और सुलेमान अलैहिस्सलाम यरूशलेम में थे। कोई इंसान या घोड़ा इतनी जल्दी तख्त नहीं ला सकता था। एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ और कहा, मैं इस तख्त को आपके पास ला सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि आपकी सभा खत्म हो। लेकिन एक और वली आरिफ बिन बरखिया खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं इसे पलक झपकते ही आपके पास ला सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी और अल्लाह के हुक्म से वह तख्त 1 सेकंड में उनके सामने आ गया। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस पर फक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब बिल्किस अपने लश्कर के साथ यरूशलेम पहुंची तो उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत देखकर बहुत हैरत हुई। उसने देखा कि ये हुकूमत दुनिया की हर हुकूमत से अलग है। इंसानों के अलावा जिन और परिंदे भी इस हुकूमत के हिस्सा थे। हर तरफ इंसाफ और अमन का माहौल था। ये देखकर बिल्किस के दिल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इज्जत और बढ़ गई। जब बिल्किस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में लाया गया तो उसने अपने सामने अपना ही तख्त देखा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या यह तुम्हारा ही तख्त है? बिल्किस ने हैरान होकर जवाब दिया, ये बिल्कुल मेरे ही तख्त जैसा दिखता है। इससे बिल्किस को एहसास हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ दुनिया तक सीमित नहीं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत दी है जो किसी और के पास नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को एक शीशे के फर्श वाले महल में बुलाया। वो जब अंदर जाने लगी तो उन्होंने देखा कि फर्श पर पानी भरा हुआ है। उन्होंने अपनी पोशाक ऊपर कर ली ताकि उनके पैर पानी में गीले ना हो, लेकिन असल में वहां पानी नहीं था, बल्कि कांच का पारदर्शी फर्श था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ देखा तो उन्होंने कहा, ये पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। इससे बिल्किस को ये समझ में आया कि उसकी आंखें भी धोखा खा सकती हैं। वह सोचने लगी कि अगर उसकी आंखें एक कांच के फर्श को पानी समझ सकती हैं, तो वह अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करने की गलती भी कर सकती हैं। अब बिल्किस को यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सच्चे नबी है और वह गुमराह थी। उसने फौरन ऐलान किया, ऐ मेरे रब, मैं सुलेमान के साथ पूरी तरह से अल्लाह के आगे सर झुकाती हूँ, जो सारे जहान का मालिक है। इस तरह बिल्किस ने अल्लाह की इबादत कबूल कर ली और इस्लाम में दाखिल हो गई। उसने अपनी पूरी कौम को भी इस्लाम अपनाने का हुक्म दिया। कुछ रिवायतों के मुताबिक बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। इसके बाद वो अपनी सल्तनत में वापस गई और इस्लाम के मुताबिक हुकूमत चलाने लगी। इस्लामी इतिहास के मुताबिक यमन की यह सल्तनत कई 100 सालों तक इस्लामी हुकूमत रही। इस तरह एक हुकूमत जो शिर्क कर रही थी वह अब अल्लाह की इबादत की तरफ आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक खास अंगूठी मोहर सुलेमानी अता की थी। इस अंगूठी की वजह से वो जिन, इंसान, हवाओं और जानवरों पर हुकूमत कर सकते थे। इस अंगूठी पर अल्लाह का इसमें अजाम, अल्लाह ग्रेट नेम लिखा हुआ था। जैसे ही वो इसे पहनते, सारी मखलूक उनकी हुकूमत के माथात हो जाती। लेकिन अगर यह अंगूठी उनसे अलग हो जाती तो वो अपनी ताकत और हुकूमत खो देते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहुत ताकतवर थी, लेकिन शैतानी जिन उनसे जलते थे और उनकी ताकत को छीनना चाहते थे। एक बार जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल करने के लिए दरिया गए तो उन्होंने अपनी अंगूठी नौकरानी को दे दी और कहा कि इसे संभाल कर रखना। यहीं पर शैतान जिन ने अपना जाल बिछा दिया। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया में गए, एक शैतान जिन जिसका नाम सखर था, उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में आकर अंगूठी मांग ली। नौकरानी ने उसे सुलेमान अलैहिस्सलाम समझकर अंगूठी दे दी। जैसे ही शैतान जिन ने वह अंगूठी पहनी, उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी ताकत मिल गई। जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में उनके तख्त पर बैठ गया। उसने फौरन अपने सारे दरबारियों और जिन्नों को अपने मतहत कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब दरबार में लौटे तो उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं था। दरबार के लोग और फौज कहने लगी, तुम सुलेमान नहीं हो, असली सुलेमान तो हमारे सामने बैठा है। इस तरह जिन ने पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया।
जब किसी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना तो वो दर दर भटकने लगे, कोई उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं था। वो एक गरीब आदमी की तरह शहरों में घूमते रहे और मजदूरी करते रहे। 40 दिन तक वो एक मामूली इंसान की तरह रहे जिसके पास कोई ताकत नहीं थी। उन्होंने मछलियां पकड़कर अपना पेट भरा और कई जगह मजदूरी की। यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान था जिसमें अल्लाह उन्हें आजमा रहा था। उधर शैतान जिन गुरूर और घमंड में आ गया था। वह खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह समझने लगा, लेकिन जब उसकी सजा का वक्त आया तो एक दिन गलती से उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने वो अंगूठी निगल ली। इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मछुआरे के घर काम कर रहे थे। उसने उन्हें खाने के लिए वही मछली दे दी जिसने अंगूठी निगली थी। जब उन्होंने मछली को काटा तो उसमें से खोई हुई अंगूठी निकल आई। उन्होंने फौरन वह अंगूठी पहन ली। जैसे ही अंगूठी पहनी, उनकी सारी ताकत और सल्तनत वापस आ गई। वो सीधे अपने तख्त की तरफ गए और जिनों को हुक्म दिया, सखर को पकड़कर कैद कर दो। फिर उन्होंने सखर को जंजीरों में बांधकर समुंदर के अंदर एक गुफा में फेंक दिया। अब जिन को दोबारा किसी को धोखा देने का मौका नहीं मिला। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोबारा उनकी सल्तनत लौटा दी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी खोई हुई सल्तनत वापस मिली तो उन्होंने पहले से भी ज्यादा ताकतवर हुकूमत कायम की। उनकी हुकूमत में इंसान, जिन, परिंदे, जानवर, हवाएं और तमाम मखलूक उनके मतहत थी। अब उन्होंने अपनी सल्तनत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों से शानदार महल, किले और बड़ी इमारतें बनवाई। ये महल इतने शानदार और ऊंचे थे कि दुनिया में कोई दूसरा हुक्मदार वैसे इमारत नहीं बना सकता था। कुरान में आता है, और हमने जिनों को उनके मतहत कर दिया, जो उनके लिए जो वह चाहते थे वही बनाते। ऊंचे महल, मूर्तियां, बड़े बड़े हौज और भारी कढ़ाएं मतलब बर्तन। इससे पता चलता है कि उनकी हुकूमत कितनी ताकतवर और इंजीनियरिंग में कितनी आगे थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हवाओं पर कंट्रोल दिया था। वो हवा के जरिए सफर कर सकते थे और उनकी पूरी सेना को भी हवा उठाकर दूसरी जगह पहुंचा सकती थी। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने हवा को उनके लिए मुस्तखर कर दिया था जो उनके हुक्म से चलती थी और एक दिन में 1 महीने का सफर तय कर लेती थी। मतलब ये है कि जो सफर आमतौर पर 30 दिनों में होता है, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ 1 दिन में कर सकते थे। उनकी फौज भी तेजी से सफर कर सकती थी, जिससे कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों और इंसानों को बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सा बनवाने का हुक्म दिया। इस मस्जिद की तामीर में सोने, चांदी, कीमती पत्थरों और मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ वही मस्जिद है जिसे मुसलमानों का गहरा ताल्लुक है और यहाँ इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। अगर आप मस्जिद अल अक्सा के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक के हर एक चीज जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के वीडियो में जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इस लिंक में जाकर फुल वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर। उन्होंने इसे 7 साल में तैयार करवाया और इसे इबादत गाह बना लिया। यहाँ इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी निशानी बनी जिसे आज भी पूरी दुनिया जानती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों से कहा कि वो समुद्र की गहराई से सोना, मोती और दूसरे कीमती खजाने निकाले। इसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस को दुनिया भर में फैलाया। उनके जहाज समंदरों में सफर करते और दूसरी सल्तनतों से कारोबार करते। इससे उनकी सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर सल्तनत बन गई। इससे हमें सीख मिलती है कि एक सच्चा बादशाह अपनी सल्तनत को मजबूत और खुशहाल बनाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इतनी ताकतवर थी कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कोई जिन या इंसान उनके हुक्म को ना मानता तो वो उसे सख्त सजा देते। कुरान में आता है, और हमने जिनों को उनके हुक्म के अधीन कर दिया जो उनके आगे और पीछे काम करते थे, और अगर उनमें से कोई हमारे हुक्म से नाफरमानी करता तो हम उसे दोज़ख की सख्त सजा का मजा चखाते। इससे पता चलता है कि उनकी सल्तनत में कानून और अनुशासन बहुत मजबूत था।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों, जिनों, परिंदों और हवाओं पर थी। उनकी सल्तनत बहुत मजबूत और अमीर थी। कोई भी उनकी हुकूमत के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। जिन उनके हर हुक्म को मानते थे और उनसे बड़े बड़े काम करवाए जाते थे। लेकिन उनकी वफात का एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिन्नों की सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। जब अल्लाह ने फैसला किया कि अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी खत्म होनी है, तो उन्होंने अपनी मौत को छुपाने का फैसला किया। वो अपने महल में खड़े होकर एक लाठी पर टिक गए। वो इसी हालत में थे और जिन उनके सामने बड़े बड़े काम कर रहे थे। कोई भी ये नहीं जानता था कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंसान तो दूर, जिन भी यह नहीं समझ सके कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह निकल चुकी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी पर टिके हुए खड़े थे। जिन उन्हें जिंदा समझकर बिना रुके काम कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि अगर हम काम करना बंद कर देंगे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें सजा देंगे। इसलिए वो डर से बिना रुके काम में लगे रहे। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। इतनी बड़ी सल्तनत थी, लेकिन किसी को उनकी मौत की भनक तक नहीं लगी। जब अल्लाह ने चाहा कि अब उनकी मौत का खुलासा हो, तो दीमकों को हुक्म दिया कि वो उनकी लाठी को खाना शुरू कर दे। धीरे धीरे दीमक उनकी लकड़ी को खाती गई और फिर अचानक एक दिन लाठी टूट गई। जैसे ही लाठी टूटी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। अब सबको पता चल गया कि वो इतने वक्त से इस दुनिया में नहीं थे। यह देखकर जिन हैरान रह गए और उनकी हकीकत खुल गई। जब इंसानों और जिन्नों ने देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत महीनों पहले हो चुकी थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन भी गैब छुपी हुई चीजों को नहीं जानते। अगर जिन्नों को गैब का इल्म होता तो वो इतने महीनों तक काम नहीं करते। कुरान में इस बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमने उनकी मौत का फैसला कर दिया तो किसी को उनकी मौत का पता नहीं चला, जब तक कि उनकी लाठी को दीमक ने नहीं खा लिया। फिर जब वो जमीन पर गिर पड़े, तब जिन्नों को एहसास हुआ कि अगर वो गैब जानते होते तो इतने समय तक सख्त मेहनत ना करते। इस वाक्य ने साबित कर दिया कि जिन भी गैब नहीं जानते। जो लोग जिन्नों को गैब जानने वाला समझते हैं, वे गलत थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बाद उनकी सल्तनत कमजोर पड़ गई। बनी इसराइल ने धीरे धीरे अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। फिर उनकी हुकूमत में फूट पड़ गई और बनी इसराइल कमजोर हो गए। कुछ टाइम बाद बख्ते नसर नाम के राजा ने यरूशलेम पर हमला किया और बैतुल मकदिस को तबाह कर दिया। बनी इसराइल फिर से दर बदर हो गए और उनकी ताकत खत्म हो गई। इससे पता चलता है कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो अपनी ताकत खो देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बड़े बादशाह ही नहीं, बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी भी थे। उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत मिली, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा अल्लाह की अमानत समझा। उनके पास दौलत, ताकत, इल्म और चमत्कारी की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा अल्लाह की अमानत समझा। उसके पास दौलत, ताकत और चमत्कारों की शक्ति थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा अल्लाह के फर्माबरदार रहे। उनकी हुकूमत, इंसाफ, मेहनत और तौहीद दावत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेतहाशा दौलत और ताकत मिली थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहते थे, यह सब कुछ अल्लाह की दी हुई नेमत है, जिससे वह मुझे आजमा रहा है। मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाफरमानी करता हूँ। इससे हमें सीख मिलती है कि जब हमें दौलत, ताकत या इज्जत मिले तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत ज्यादा हिकमत दी थी। उन्होंने कभी भी गलत फैसला नहीं किया और हमेशा इंसाफ से काम लिया। जब उनके पास कोई मुश्किल केस आता तो वो उसे बड़ी अक्लमंदी से हल करते थे। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कोई ताकत या पद है तो हमें हमेशा इंसाफ और हिकमत से फैसले करना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन, हवाओं और जानवरों पर कंट्रोल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल नेक कामों और अल्लाह की राह में किया। उन्होंने मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई, शानदार इमारतें बनवाई और लोगों की भलाई के काम किए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें ताकत या रिसोर्स मिलते हैं
तो हमें उन्हें सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। शैतानी जिन सखर ने धोखे से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुरा ली थी और खुद को राजा बना लिया, लेकिन जब उसने गुरूर और घमंड किया तो अल्लाह ने उसे जलील कर दिया और उसकी हुकूमत छिन गई। यही हाल उन तमाम बादशाहों का हुआ जो अल्लाह को भूल गए और घमंड करने लगे। इससे हमें सीख मिलती है कि घमंड और गुरूर इंसान को हमेशा नीचे गिरा देता है। अगर हमें ताकत मिले तो हमें विनम्र और शुक्रगुजार बनना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस और उसकी कौम को सूरज की पूजा करते देखा तो उन्होंने उन्हें सही रास्ते की तरफ बुलाया और इस्लाम की दावत दी। बिल्किस ने अपनी गलती मानी और अल्लाह की इबादत करने लगी। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और शिर्क से बचना चाहिए। हमें दूसरों को भी सही रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन प्यार और हिकमत के साथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का खुलासा तब हुआ जब दीमक ने उनकी लाठी खा ली। जिन यह सोचकर महीनों तक मेहनत करते रहे कि वे अभी जिंदा हैं। इससे साबित हुआ कि जिन गैब अनदेखी बातें नहीं जानते। इससे हमें ये सीख मिलती है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, ना किसी इंसान को और ना किसी जिन को। हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और किसी और से गैब की बातें नहीं पूछना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहुत ताकतवर थी, लेकिन उनकी मौत के बाद यह कमजोर हो गई। बनी इसराइल ने फिर से अल्लाह की नाफरमानी की तो उनकी हुकूमत खत्म हो गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया की हर चीज फना होना है, चाहे वह ताकत हो, दौलत हो या हुकूमत। हमें अपनी जिंदगी को हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बिताना चाहिए, क्योंकि यही हमेशा रहने वाला है। ताकत और दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमें कोई ओहदा मिले तो इंसाफ और हिकमत से फैसले करना चाहिए। ताकत और रिसोर्स का इस्तेमाल नेक कामों और लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। गुरूर और घमंड करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और शिर्क से बिल्कुल बचना चाहिए। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, ना इंसान को और ना जिन को। दुनिया की हुकूमत और ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन अच्छे काम हमेशा याद रखे जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक स्टोरीज एंड इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें। आप कौन सी इस्लामिक कहानियां सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए वो कहानी वैसी बनाकर ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।